नमस्कार, मेरा नाम अनुज भार्गव है। मुकुल हिंदी स्कूल की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमारे मुकुल की प्रबंधक समिति एवं समस्त मुकुल परिवार की ओर से मैं आप सभी का इस वर्चुअल समारोह में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा मुकुल स्कूल से संबंध 40 वर्षों से अधिक रहा है। इस विद्यालय के साथ मेरी यात्रा एक छात्र के रूप में प्रारंभ हुई। यह स्कूल मेरी हिंदी की शिक्षा एवं हमारी संस्कृति को सीखने में बहुत सहायक रहा है। अब मैं बहुत गर्व से अपने दोनों बच्चों को मुकुल हिंदी स्कूल में पढ़ने के लिए लाता हूँ। मैं इस स्कूल की समिति का सदस्य भी रह चुका हूँ। अपने देश से दूर रहकर भी हमारे बड़ों ने अपनी संस्कृति और पहचान को इस स्कूल के माध्यम से जीवित रखा है। किसी भी संस्था का 50 वर्षों तक चलना बहुत ही प्रशंसनीय है और अपने आप में ही एक उपलब्धि है, और मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ जिनकी सहायता, परिश्रम एवं निष्ठा से यह संस्था आज इस पड़ाव पर पहुंची है। मुकुल हिंदी स्कूल को इस उपलब्धि पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और यह संस्था इसी प्रकार उन्नति की ओर अग्रसर हो, यह मेरी अभिलाषा है। अब मैं आप सब से निवेदन करता हूं कि कृपया कनाडा और भारत के राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। I would now like to invite Mr. Amit Bajpai ji, ex-chairperson of the Mukull Hindi School Committee and current co-chair of the 50th Anniversary Committee, to say a few words. Following Amit ji, Mr. Dinesh Mohan ji, ex-chair of Mukull Hindi School, and the other co-chair of the 50th Anniversary Planning Committee, to give us his remarks. Finally, Mr. Vinay Prohat ji, who is the current chair of Mukull Hindi School Management Committee and the volunteer coordination lead of Mukull Hindi School's 50th Anniversary Planning Committee, will say a few words as well. नमस्ते मुकुल परिवार, मेरा नाम अमित वाजपेयी है और आज मुकुल के इस स्वर्णिम जयंती पर
मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। On behalf of everyone associated with the school for the past 50 years, we would like to extend a warm welcome to you for joining us on this very special virtual kickoff event on the school's 50th Golden Jubilee anniversary. Over 5 decades ago, an idea to sow the seeds of Hindi language instruction, Indian cultural experiences, into the young minds of Indian children who were either born in Canada or immigrated at an early age was born out of the strong will and dedication of several Indian families and members of the Ottawa area business community. 1971 में श्रीमती मेधा भटकामकर जी, जो कि उस समय के उच्च आयुक्त मिस्टर अशोक भटकामकर जी की पत्नी थी, उन्होंने मुकुल का नामांकन किया था. She named the school Mukul, which means a flower that is about to blossom. The idea of this school was then nurtured into reality based on the voluntary work of 4 founding teachers, Srimati Indu Mehta, Srimati Prem Srivastava, Srimati Malti Kesarwani, and Srimati Sarita Jindal ji, to name just a few. On behalf of the school, we would like to pay our deepest, heartfelt respects to Srimati Indu Mehta ji and Srimati Prem Srivastava, who carried the torch of knowledge and are no longer with us today. Thank you for everything, for showing us the way. Starting from the humble beginnings in a single classroom at the National Public Library with just 10 students, the school has absolutely blossomed into 200 students who wake up early on Saturday morning to not only enrich their personality, also enrich the people who they come in contact with the rich Indian heritage and Hindi language skills as active members and adults of Indo-Canadian Mukul family who are now located all over the world. To explain how the school intends to mark this historic milestone, I shall now invite Mr. Dinesh Mohan to speak a few words on behalf of the organizing committee. Dhanyawad. Namaskar. My name is Dinesh Mohan, and I am a past Mukul parent, past chair of the Mukul Management Committee, and the co-chair of Mukul's 50th Anniversary Committee. लगभग 3 साल पहले मुकुल हिंदी स्कूल की 50वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए कुछ शिक्षकों और समुदाय के प्रमुख सदस्यों द्वारा एक विचार प्रकट किया गया और हमें 50वीं वर्षगांठ समारोह को आयोजन करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने के लिए कहा गया. मैं और मेरे सह अध्यक्ष अमित वाजपेयी इकट्ठा हुए और यह देखना शुरू किया कि हम इस महत्वपूर्ण उत्सव को कैसे मना सकते हैं. The 50th anniversary is a big milestone in any organization, and in order to promote the Hindi language and its benefits to the Indians abroad, it was imperative that we celebrate the milestone and share the journey with the students, teachers, and parents. In the pre-COVID timeframe, the intent was to have a gala event spanning across a few days in 2021, as the school itself was launched in 1971. हमने जल्द ही अन्य समर्पित सहकर्मियों के साथ एक कमेटी का गठन किया. But then COVID happened, and just like everybody else, we had to make adjustments. So we decided to organize this first virtual event. I'm really glad to mention that these groups of committed individuals have been working tirelessly in the organization of this event, and we still intend to hold a in-person gala event eventually as the COVID restrictions are lifted. We'll keep you posted as some of these subsequent events are organized. हम बहुत ही भाग्यशाली थे कि हमें श्री डॉक्टर सुमेश भार्गव और श्री निशित गोयल की सलाहकार समिति से सलाह और मार्गदर्शन मिला और यह मिलता रहेगा. अंत में मैं 50वीं वर्षगांठ समिति के अन्य सदस्यों का नाम शीघ्रता से लेना चाहूँगा. भूमिका बख्शी, विनय पुरोहित, मोनिका कुमारी, सचिन गोलेचा, रोहित जैन, वेदमणि शरण, मितुलिका चावला
or Rajan Barara. I'm really thankful to all these committed individuals for their continued efforts in bringing this event together, and I'm hoping that you will all enjoy this event that we have put together. Thank you. नमस्कार। मुकुल हिंदी विद्यालय की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी अतिथियों और हिंदी भाषा के कर्णधारों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भारत के बाहर हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार में मुकुल हिंदी विद्यालय का अविस्मरणीय योगदान रहा है। Currently, the school offers Hindi language instructions free of charge by the local board through the International Language Program. We have 150 families and over 250 students registered with us. While the board provides teachers and supporting staff, Mukul Management Committee organizes all the Indian cultural events such as Holi, Diwali, Hindi Divas, annual picnic and annual functions. Mukul Management Committee also presents academic achievement awards to Mukul students. We are very proud to say that despite the COVID situation for last 2 years, we were able to run the classes and organize all the cultural events virtually. हिंदी भाषा हमारे जीवन का एक अनमोल और अभिन्न अंग है और इसे पुष्पित और पल्लवित रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा कहना है कि बढ़ाएं मान हिंदी का, लिखें हिंदी, पढ़ें हिंदी। बढ़ाएं मान हिंदी का, लिखें हिंदी, पढ़ें हिंदी। करें सम्मान हिंदी का, रहे हिंदी, बढ़े हिंदी। करें सम्मान हिंदी का, रहे हिंदी, बढ़े हिंदी। एक बार पुनः आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की बधाइयां देते हुए इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि शेष कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। I would like to introduce to you now Dr. Ashok Chakradhar, a Hindi lyricist and poet from India. Dr. Chakradhar was a teacher at the Jamia Millia Islamia University in Delhi, where he served as its head of the Department of Hindi. In 2007, he became the Hindi coordinator at the Institute of Lifelong Learning at the University of Delhi, and in 2009 was appointed as the Vice Chairman of Hindi Academy, Government of Delhi, and as the Vice Chairman of the Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Ministry of Human Resource Development, Government of India. In 2014, he was honored by the Government of India with the Padma Shri Award. Notably, he is also the son-in-law of the famous Indian poet, Hasya Kavi Kaka Hatrasi. As some of you may remember, Mukul Hindi School had invited and was honored to receive Kaka Hatrasi as a special guest in 1986. It was at that time that Kakaji shared with us some of his humorous poems and verses to the delight of many in the Ottawa Indian community, and in doing so helped to support and promote the Hindi language and Indian culture in Canada. मैं भारत का एक साहित्यकार अशोक चक्रधर कनाडा में ओटावा के मुकुल हिंदी स्कूल से जुड़े सभी आत्मीयों को प्रणाम करता हूं। मुकुल हिंदी स्कूल की स्थापना को 50 वर्ष हो चुके हैं। ये उसका स्वर्ण जयंती वर्ष है। मैं आप सभी को स्वर्ण जयंती वर्ष की बधाई देता हूं। अब तक मेरा कनाडा जाना 3 बार हुआ है। ओटावा जाने का सहयोग तो नहीं मिला, लेकिन हर बार जब वहां मैंने हिंदी शिक्षण की स्थिति जाननी चाहिए तो एक सफल और प्रेरणादायी उदाहरण के तौर पर लोगों ने मुकुल स्कूल का नाम लिया। आपकी ख्याति और आपकी हिंदी के उन्नयन के लिए जो सकारात्मकता है, मैं उसका अभिनंदन भी करता हूं। मैंने देखा कि आपके मुकुल हिंदी स्कूल का जो मोनोग्राम है, लोगो, एकल प्रतीक चिन्ह, मुकुल हिंदी स्कूल की पहचान, उसमें नीचे संस्कृत में लिखा हुआ है तमसो मां ज्योतिर्गमय। संस्कृत का ये वाक्यांश बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। अच्छा, अगर कोई जिज्ञासु बच्चा पूछ ले कि हिंदी स्कूल है तो संस्कृत का वाक्यांश क्यों लिया? किसी हिंदी कविता का भी ले सकते थे। उसका कारण है, और कारण सीधा सरल है। कोई पूछे
तो आप बता भी सकते हैं कि भाई देखो, हम हिंदी को अपनी माँ कहते हैं और संस्कृत है हमारी हिंदी माँ की माँ, यानी हमारी नानी। तो न केवल हिंदी के लिए बल्कि दूसरी बोलियों के लिए और देश भर की लगभग सभी प्रांतीय भाषा भाषियों के लिए संस्कृत हम देशवासियों की मातामह की तरह है। इसलिए पूरा भारत संस्कृत भाषा को आदर देता है, मान देता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका अर्थ है अंधकार को त्याग कर प्रकाश के मार्ग पर बढ़ना। अंधेरा छोड़ो और प्रकाश की ओर दौड़ो। मैंने वेदों से ही लिया हुआ एक और सूक्त भी पढ़ा है, ज्योतिर्वृणीत तमसो विजानना। कब और किस तरह से पढ़ा वो हालात मैं आपको बताता हूं। दिल्ली में एक विश्वविद्यालय है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। वहां के जो कुलपति हैं, मेरे मित्र हैं डॉक्टर महेश वर्मा। उन्होंने मुझे बुलाया वहां और मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि आप इसका विश्वविद्यालय का एक कुलगीत लिख दीजिए। अब कुलगीत लिखना था तो मैंने गंभीरता से शुरू किया खोजना। तब मुझे इस लोगो के नीचे ये लिखा हुआ दिखाई दिया, तमसो वृणीत ज्योतिर्वृणीत तमसो विजानना। तो मैंने इसका अर्थ तमसो मां ज्योतिर्गमय की तरह ही समझा कि ज्योति को आने दो, अंधकार को जाने दो। ऐसे ही मैंने इसके बारे में समझा, लेकिन फिर भी चाहता था कि इसके बारे में मुझे बिल्कुल 100% सही अनुवाद का ज्ञान होना चाहिए। तो किसी ने कहा कि ज्योतिर्वृणीति तमसो विजानना, अंधियारा चला जाएगा तो अंधेरा नहीं रहेगा, ज्योति के आने से अंधेरा चला जाएगा। वैसा ही अर्थ जैसा कि तमसोमा ज्योतिर्गमय का है, लेकिन नहीं, इसका ये अर्थ नहीं था। एक प्रकांड पंडित ने मुझे बताया कि अगर हम अंधकार को जान लें तो ज्योति अपने आप आ जाएगी, उजाला अपने आप आ जाएगा। इससे पहले एक साहब कह रहे थे कि अगर ज्योति आ जाएगी तो अंधियारा विजानना जंगल में चला जाए। मैंने कहा भैया, विजान थोड़ी होता है जंगल, विजन होता है जंगल। तो विजन वनवल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी। तो मुझे इन दूसरे वाले की बात ठीक नहीं लगी, पहले वाले जो प्रकांड विद्वान थे उनकी बात ठीक लगी। उन्होंने कहा कि ज्योतिर्वृणीत तमसो विजानना, तमस को, अंधकार को अगर जान लो तो ज्योति अपने आप आ जाएगी। तो मैंने उस गीत में लिखा था, अंधकार को जान लो अगर उजियारा आ जाए स्वयं। तो उजाला अंधेरे के कारण आता है, अंधेरे को जानना जरूरी है। कुछ अंधेरे हमारे दूर होने चाहिए। एक अंधेरा मैं आपको बता रहा हूं। हिंदी को माना जाता है कि संसार की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा है। पहले नंबर चीन की मंदारिन को दिया जाता है और दूसरे नंबर पे स्पेनिश आती है, तीसरे नंबर पर हम हिंदी वाले और चौथे नंबर पर अंग्रेजी बताई जाती रही है। माना कि पिछले 20 वर्ष में अंग्रेजी संसार भर में बढ़ी है भूमंडलीकरण के बाद, लेकिन हिंदी की बढ़त की रफ्तार उससे भी तेज रही है। आज सोशल मीडिया, फिल्म, जनसंचार माध्यम, पत्र पत्रिकाओं और वेब सामग्री के कारण और यूनिकोड प्लेटफॉर्म पर भारतीय भाषाओं के आ जाने के कारण हिंदी देश भर की संपर्क भाषा बन गई है। हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा वैधानिक रूप से घोषित कर दिया जाएगा। जैसे कि चीन में मंदारिन को राष्ट्रीय भाषा बताया गया, हमारे देश की तरह वहां भी मंदारिन से मिलती जुलती 25-30 भाषाएं हैं। यदि हमारे देश की हिंदी की सहोदरा बोलियों और स्थानीय भाषाओं का
संख्या बल भी मिल जाए, उसमें उर्दू और बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदुस्तानी भी शामिल हो जाए, तो वैश्विक भाषा के रूप में हमारा संख्या बल सबसे अधिक हो जाएगा। हिंदी अब अतीत के आंकड़ों से बहुत ऊपर उठती जा रही है, लेकिन इस विषय में एक व्यापक अंधियारा फैला पसरा पड़ा है। इस अंधियारे को जान लें तो उजियारा अपने आप फैलता जाएगा, हिंदी सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगी। देखिए, भाषाएं क्या होती हैं? भाषाएं संस्कृति का वाहन हुआ करती हैं। हिंदी को जाने बिना भारतीय संस्कृति को जानना कठिन है। और हमारा देश बहुरंगी है, हिंदी भी बहुरंगी होकर विकसित हो रही है। इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूंगा कि देखिए, एक होती है मानक हिंदी, दूसरी स्थानक हिंदियां। स्थानक हिंदियां जैसे तमिल हिंदी, तेलुगु हिंदी, कन्नड़ हिंदी, मलयालम हिंदी, बांग्ला हिंदी, उड़िया हिंदी, बिहारी हिंदी, पंजाबी हिंदी, राजस्थानी हिंदी वगैरह वगैरह। यानी हिंदी को उनकी अपनी भाषा का स्नेहिल स्पर्श मिल जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, उसकी छटा बदल जाती है। आप पता लगा सकते हैं कि हम पंजाबी भाई से बात कर रहे हैं, हम बंगाली भाई से बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह से अलग अलग तेवर की, अलग अलग मिजाज की हिंदियां हैं। और मानक हिंदी वो जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। और इस तरह हिंदी के माध्यम से देश भर में सद्भाव बढ़ाते हैं। ये सद्भाव पूरी वसुधैव कुटुंबकम नाम की कॉलोनी में फैल जाता है। तो मेरे लिए हिंदी एक सद्भावना है। मैंने हिंदी का एक सद्भावना गीत लिखा है। कभी आपके यहां आऊंगा, आकाश मार्ग खुल गया, तब हंसी की कविताएं भी सुनाऊंगा। लेकिन आज हिंदी स्कूल के लिए मेरे इस गीत का अवसर है, जिसे हजारों हजार बच्चों ने भारत में गाया है। उस्ताद अमजद अली खान साहब ने इसकी धुन बनाई है और इसे सद्भावना गीत कहा जाता है। मेरे लिए हिंदी एक सद्भावना है। सुनिए सद्भावना गीत। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। मौसम की बाहें, दिशा और राहें, सब हमसे चाहें सद्भावना। घर की हिफाजत, पड़ोसी की चाहत, हर एक दिल को राहत तभी तो मिले। हटे सब अंधेरा, ये कोहरा घनेरा, सब उज्ज्वल सवेरा तभी तो मिले। जब हर हृदय में, पराजय विजय में, हिंदी की लय में, उर्दू की लय में हो साधना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। हमारे देश में संभावनाओं की बेशुमार खिड़कियां खुली हुई हैं, क्योंकि इस समय विश्व भर में सर्वाधिक नौजवान भारत के या भारतीय मूल के ही हैं। समय की रवानी, फतेह की कहानी, धरा स्वाभिमानी जवानी से है। गरिमा का पानी, ये गौरव निशानी, सुखी जिंदगानी जवानी से है। मधुर बोल बोले, युवा मन की होले, बिलन द्वार खोले संभावना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। हमें जिसने बख्शा भविष्यत का नक्शा, हमें जिसने बख्शा भविष्यत का नक्शा, समय को सुरक्षा उसी से मिली। जरा कम न होती कभी जो न सोती, दिए की ये ज्योति उसी से मिली। नफरत थमेगी, मोहब्बत रमेगी, ये धरती बनेगी दिव्यांगना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। मौसम की बाहें, दिशा और राहें, सब हमसे चाहें सद्भावना। हिंदी ही है जो जरा कम न होती कभी जो न सोती, दिए की है ज्योति। ज्योतिर्वणित तमसो विजानन, अंधकार को चीर कर उजाला लाती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, आइए अंधकार को त्याग कर प्रकाश के मार्ग पर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। It gives me great pleasure now to introduce to you someone who needs very little introduction to our Hindi-speaking community in Ottawa, Dr. Jagmohan Humar. Dr. Humar is a distinguished research professor of civil engineering at Carleton University. He is the recipient of many distinctions, awards, and honors.
He has published widely in his field as well. He has also served as an expert consultant on the design of several prominent projects in Canada, including the Sky Dome, the National Aviation Museum, and the rehabilitation of the Parliament buildings. Dr. Hoomer's contributions to our community are exemplary. He is a longtime president of the Jain Society of Ottawa Carleton and the founding president and current honorary executive member of the Mahatma Gandhi Peace Council of Ottawa. Dr. Hoomer has also distinguished himself in creative writing in Hindi and has published work in Hindi which has earned him the Sahitya Shrijan Samman of the Hindi Writers Guild of Toronto. For his many contributions to education, scholarship, and his profession, and for his community leadership, Dr. Hoomer has earned the highest civilian award given to any Canadian citizen, the Order of Canada. Dr. Hoomer and his family have had a long association with Mukul Hindi School, during which they have assisted the school in many ways. Mrs. Yash Hoomer has served the school both as a teacher and a principal over the past several years, and their 3 children, all of whom are Mukul Hindi School alumni, have achieved enormous professional success in their own careers. I would now like to invite Jagmohan Uncle to say his poetry for us on this lovely occasion. मुकुल हिंदी स्कूल से हमारे परिवार के अत्यंत प्राचीन संबंध हैं। स्कूल की स्वर्ण जयंती के समारोह में भाग लेते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। कार्यकारिणी समिति को उनके आमंत्रण के लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। स्कूल से संलग्न वर्षों में मैंने छात्र छात्राओं के लिए कई बार कविताओं की रचना की है। उनमें से एक कविता जिसका शीर्षक है माँ और न की कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। इस कविता में हिंदी वर्णमाला के 2 अक्षरों माँ और न के विवाद का वर्णन है। दोनों अपने आप को ऊंचा सिद्ध करना चाहते हैं। उनके विवाद की आवाज वह तक पहुंचती है जो एक विवेकी अक्षर है। वह माँ और न को उनके विवाद की निरर्थकता को समझाने का प्रयत्न करता है। तो सुनिए माँ और न की कहानी। जो बात आज मैं कहता हूं वो बहुत पुरानी बात नहीं। दुर्गत भाषा की देख देख हिंदी वर्णों की आंख बही। भाषा की खिचड़ी खूब पकी। बंगाल प्रांत से बंबई तक अपभ्रंश हुए सब शब्द वाक्य उत्तर प्रदेश से दक्षिण तक। बंगला बाबू चल को खाते। बंबईया वाणी अति विचित्र। खाली पीली है बूम मची। सुन व्यर्थ शोर को कहे मित्र। प्रांगण में पंत निराला के सबाज शोर को कहे शोर। शशि का उच्चारण शशि करते। कहना निश्चित था कहें स्योर। मिल बैठक की सब वर्णों ने प्रस्ताव एक फिर पास किया। कर एक समिति का निर्वाचन भाषा का संरक्षण भाग दिया। न और न को सब वर्णों ने संचालक का तब काम दिया। दोनों नेता अत्यंत कुशल सब काम हाथ में थाम लिया। पर पहले पद का अधिकारी उन दोनों में से कौन बने। मैं अनुक्रम में तुझसे ज्यादा माने तब ऐसे वचन कहे। कुछ रोष लिए तब न बोला। मैं मान तेरा कितना ऊंचा। मैं जहां नम्र मगरूर है तू। कर ले आज तक तू कुछ नीचा। तो मां कहता है हे नष्ट बुद्धि तू है निठाल। मैं महापुरुष में महाप्राण। तू नीरस और निरर्थक है। मैं मन भावन में मूल्यवान। तो न कहता हे मंद बुद्धि है मूर्ख मूढ़। मैं निपुण निरामय नीतिवान। पक्कार मतलबी तू जो है निष्कपट नवल में निर्विकार। मां का जवाब तू निर्दय निष्ठुर निंदनीय। मैं मृत्युंजय तू नाशवान। मैं मृदुल मनोरम मंगलमय। तू है नगण्य मैं हूं महान। मुट्ठी पर माटी को पाकर तू सबको खुद को मालदा। मैं नामी और निराला हूं। नवरत्नों सा मेरा निखार। तो मां कहता है निस्तेज निखट्टू निर्मम तू एक नंबरी नीच नाम। मैं हूं मनोज्ञ मैं माहिर हूं। मर्मज्ञ ज्ञान में मूर्तिमान। मैं नारायण हूं
तू है मलेच्छ। मैं नायक हूं, तू मंदभाग्य। तू मरुथल की मृग तृष्णा है, मैं नील गगन सा हूं विशाल। दोनों की लड़ाई चलती रही। तो मां ने कहा, जो मैं मनुष्य तो तू है निशंस, मैं माननीय तू निंदित है। मुझ में मधुमय सा है मिठास, तू मान नाम नशे में पूरित है। सत्तरी दिशाएं गूंज उठी, म और न का लेकर ये विवाद। व के कानों तक पहुंचा उनके शब्दों का बढ़ता निनाद। वह था सब वर्णों में विशिष्ट, वह विवेकमय विनयवान। उसके विचार थे विशद विमल, वह मन वारिद समवंदित विशाल। मन म का तब विक्षिप्त हुआ, न का सुनकर वह विवाद। क्यों लड़ते तुम अविवेकी हो, वो मतवा ले या नशेमान। म लीला न ले न से मिलता, तब तब मलिन हो जाता है। सुनिए, म लीला से ले मन न से मिलता, तब तब मलिन हो जाता है। हास्य लिए न से मिलता तो यह महान हो जाता है। न ने म से जोड़ किया तो बना नाम और नाम लिया। और म की गति म से जो मिली, नगमे उभरे सम्मान मिला। ना एक वर्ग से काम चले, ना एक वर्ण से काम चले। शब्दों का गठन कराना तो आवश्यक वर्णों की संधि भाषा का शोर बढ़ाना। जो सामंजस्य होगा वर्णों का, स्वर में व्यंजन मिल जाएंगे। भाषा की वृद्धि तब होगी जब मनमुटाव मिट जाएंगे। छोड़ो मति भ्रम, मानिंद बनो सानिंद बनो। सहयोग मार्ग अपनाओ तुम, निर्वाचन जिसके लिए हुआ उस लक्ष्य सफलता पाओ तुम। वह ने यह कहकर विराम लिया और मां की ना की संधि हो गई। धन्यवाद। स्कूल की स्वर्ण जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुझे अत्यंत आनंद होता है। कार्यकारिणी समिति को उनके आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुकुल के साथ लंबे संपर्क की अवधि में कई साहित्यिक रचनाओं के सृजन में बहुत उत्साह और सुख की अनुभूति हुई है। इनमें से एक कविता आपके सामने प्रस्तुत है। शीर्षक है मुकुल स्कूल की मुसीबत। ये एक हास्यात्मक कविता है, जो आइए इस प्रस्तुति का आनंद लीजिए। मुकुल हिंदी स्कूल की इस क्लास में हम जा फंसे, स्वरों का मतलब न समझे व्यंजनों में जा फंसे। सर्व है क्या व्यंजन है क्या, हमसे वो पूछो भला। स्वर मिले गीतों में तो व्यंजन मिठाई में मिला। अक्षरों को छोड़िए खेलना सिखलाइए, चमचमाते दांत मोती के दिखाते जाइए। छात्र अपनी टीचर से अपने अध्यापिका से कहें। मुझसे क्रेडिट क्लास में टीचर ने एक दिन ये कहा, बैठना तुम बाद में पहले पढ़ो 12 खड़ी। मैडम को गुस्सा आ गया, जो मैं सिधारी क्लास से, मेरा नहीं कसूर, मैं तो पढ़ रही बाहर खड़ी। जो कहा मैंने किया, गुस्सा निगल अब जाइए, चमचमाते दांत मोती से दिखाते जाइए। टीचर से एक दिन स्कूल में मेरे पिता आकर मिले। मैडम से तब मैं पूछ बैठी, गुफ्तगू में क्या हुआ। पढ़ते नहीं तुम तनिक भी, सो अब नहीं कुछ खैर है। मैंने तुम्हारे पितृ से चिट्ठा सभी कच्चा कहा। कच्चा तो मेरा दोष क्या, चिट्ठा पकाकर खाइए, चमचमाते दांत मोती से दिखाते जाइए। टीचर हमारी बोलती झरने के पानी की तरह, बिन रुके बिन ब्रेक के इंजन की गाड़ी की तरह। झरने के कलकल गीत से कुछ आंख जो मेरी लगी, नदिया में तूफान आ गया, करती नहीं मैं दिल लगी। वाणी मधुर सुन नींद आई, शांत भी हो जाइए, चमचमाते दांत मोती से दिखाते जाइए। धन्यवाद। I would now like to introduce to you our chief guest, His Excellency Shri Ajay Bisaria, the High Commissioner of India to Canada, who was posted to his current position in March of 2020. He is a career diplomat who joined the Indian Foreign Service in 1987. Bisaria ji has a bachelor's degree in economics from St. Stephen's College in Delhi,
a master's degree in business administration from IIM Kolkata, and a master's degree in public policy from Princeton University. After joining the Foreign Service and taking up positions in Moscow and Berlin, to name a few, Mr. Bisaria was appointed Private Secretary to the Prime Minister of India in 1999 and served in this capacity until 2004. During most of this period, he was an aide to Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and contributed to various economic, defense, and foreign policy initiatives of the time. Bisaria ji was then posted to the World Bank in Washington, D.C. as advisor to the Executive Director of South Asia. In 2009, he moved to Delhi to serve as Joint Secretary, Eurasia, in the Ministry of External Affairs. He has served as India's ambassador to Poland with concurrent accreditation to Lithuania, following which he served as High Commissioner of India to Pakistan. During this time, he helped establish links for India to engage with the new Pakistani government led by Prime Minister Imran Khan. More recently, he was part of the team representing India to the UN Human Rights Council in Geneva in 2019 for a successful outreach on India's human rights record. Bisaria ji has published and lectured on issues of trade, finance, and diplomacy with a focus on South Asia, Eurasia, and Central Asia. He is fluent in Hindi, English, and Russian, and has a working knowledge of German, Polish, and Urdu. He has a deep interest in yoga, plays golf, enjoys reading, and he is married to environmentalist and writer Bharti Chaturvedi, the founder of the NGO Chintan. We now welcome His Excellency Shri Ajay Bisaria to address us on this wonderful occasion. नमस्कार, मुकुल परिवार को स्वर्ण जयंती पर मेरी हार्दिक बधाई। आपने पिछले 50 वर्षों से भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में अमूल्य योगदान दिया है। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ आपकी स्वर्ण जयंती मनाने पर मुकुल परिवार को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। The Golden Jubilee is a big milestone for any establishment. On behalf of the Indian government and the High Commission of India in Ottawa, Canada, I congratulate the Mukul family, the students, the teachers, parents, and the management, and particularly the alumni who are all participating in today's event virtually from all over the world. I understand that starting from today, alumni meet, a series of virtual alumni reunions are planned through the summer of 2022. The Mukul Hindi School in Ottawa was founded in 1971 by the Indian community in Ottawa with the support of Mrs. Medha Bhattkumar, wife of the then High Commissioner of India to Canada, with the aim of teaching Hindi and providing children of the community the experience of rich cultural heritage of India early in their personal growth. Over the years, its footprint has grown and it has started operating under the aegis of both the heritage and international language programs of the Ministry of Education of Ontario. It is now an affiliated school with Ottawa Carleton District Board for the Hindi language. It has under its role students from within and outside the Indian community. Today, it is the largest school that provides the Indian cultural experiences in the National Capital Region of Ottawa in Canada. This year, the school is celebrating its Golden Jubilee to reflect upon the remarkable evolution it has gone through over the past 5 decades. I congratulate the management committee of the school for working passionately over the past decades to sustain the founding vision of the school. Since its inception, Mukul Hindi School has worked in close association with the High Commission of India in Ottawa for various cultural initiatives apart from the propagation of Hindi. The school has given generations of students from the Indian community in Canada a strong grounding in not just the language of their roots, but also in the culture and traditions of India. इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं फिर एक बार मुकुल हिंदी स्कूल से जुड़े सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं और इस आयोजन की सफलता की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
मेरा नाम शशि अब्रोल है। मैं मुकुल हिंदी स्कूल में जेके की टीचर हूँ। मैं नई नई भारत से आई तो मेरे घर में कोई भी बोलने वाला नहीं था। जब मुझे हिंदी स्कूल पढ़ाने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर भी हिंदी बोलने वाले परिवार रहते हैं। मेरा 40 साल का मुकुल का अनुभव, मैंने मुकुल को प्रगति करते हुए देखा है। और मैं अपनी कक्षा का अगर अनुभव कहूँ तो मेरी क्लास में मेरे को बहुत खुशी की बात है कि बहुत बच्चे खुशी खुशी आते हैं और बहुत सीख कर जाते हैं। मुकुल की प्रगति के विषय में अगर कहें तो आज आप देख सकते हैं कि हमने मिनिमम रिसोर्सेज से पढ़ाते थे हम 40 साल पहले, और आज मुकुल हिंदी स्कूल की इतनी क्लासेस सफलतापूर्वक ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और पॉजिटिव फीडबैक इज एक्सीलेंट। नमस्कार, मेरा नाम महालक्ष्मी गुप्ता है। मैं मुकुल हिंदी स्कूल में 1987 से सीनियर किंडरगार्टन की अध्यापिका। मुझे बच्चों को हिंदी भाषा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिक्षित करना बहुत अच्छा लगता है। इस 50वीं स्वर्ण जयंती को मैं अपने मुकुल परिवार के साथ मना रही हूँ। इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अरुणा गुप्ता है और मैं कक्षा 7 और 8 के बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ। मुकुल स्कूल से हमारा संबंध 1971 से है, जब से हिंदी स्कूल की शुरुआत हुई। मेरे पति डॉक्टर कमलेश गुप्ता हिंदी स्कूल में बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनका निर्देशन करते थे। मुझे खुशी इस बात की होती है और मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है जब मेरे विद्यार्थी अपने बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए लेके आते हैं, क्योंकि मुकुल 3 पीढ़ियों का संगम है। नमस्कार, मैं शुभा करीब 12 वर्षों से मुकुल में हिंदी पढ़ा रही हूँ। सन 2002 में एक पेरेंट के रूप में मुकुल से मैं जुड़ी। मेरी बेटियां मुकुल ग्रेजुएट हैं। मेरे लिए सबसे संतोषजनक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी भाषा के शिक्षण के माध्यम से मैं भारतीय मूल्य, संस्कृति और भारत के गौरवशाली इतिहास की जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक प्रयास कर सकी। आप सबको मुकुल की स्वर्ण जयंती पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम शुभ्रा वाजपेयी है और मैं मुकुल हिंदी स्कूल में कक्षा 2 को पढ़ाती हूँ। मैंने सन 2013 में सप्लाई टीचिंग करके पढ़ाना शुरू किया था और 2017 से मैं हर हफ्ते पढ़ा रही हूँ। मुकुल हिंदी स्कूल मेरे लिए परिवार की तरह है और इसके साथ मेरी कई यादें जुड़ी हैं। सबसे अनोखी याद सन 2012 के दिवाली फंक्शन की है, जब मेरे बच्चों के नानी नाना दादी दादा पहली और आखिरी बार एक साथ बैठ के फंक्शन देख रहे थे। वो मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी। मुकुल हिंदी स्कूल के पूरे परिवार को मेरी तरफ से स्वर्ण जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका सिंघल है और मैं मुकुल हिंदी स्कूल में अध्यापिका हूँ। सबसे पहले हम सभी को मुकुल हिंदी स्कूल की 50वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं स्वर्ण जयंती का हिस्सा बनी। मुझे मुकुल हिंदी स्कूल से जुड़े हुए 6 साल हो गए और इन वर्षों में मुझे कभी भी अपने देश की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि हम सब भारतीय यहाँ पे सभी त्योहार मिलजुल कर बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मेरा नाम सुमी शैली है। मैं मुकुल हिंदी स्कूल से कई वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। इस शुभ अवसर पर मैं समस्त मुकुल परिवार को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देती हूँ। मुकुल हिंदी स्कूल ने हिंदी भाषा एवं भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई है। I would now like to welcome Dr. Mahesh Kumar Sharma, Member of Parliament from Gautam Buddha Nagar constituency, UP, and ex-Minister of Tourism and Culture.
Dr. Sharma is a doctor by profession, a social activist by passion, and politician by compassion. Fondly called as Dr. Sahab by his supporters and opponents alike, Dr. Sharma is known for his people-centric approach, hard work, social commitment, and administrative capabilities. He opened a hospital in Noida, which could serve the residents with healthcare services of international standards at a reasonable cost. He then extended the benefits of high-quality medical services at affordable prices to other areas as well by opening the Kailash group of hospitals in many areas that are remotely located and where medical facilities and health infrastructure are scarce. We wish to welcome Dr. Mahesh Kumar Sharma to address our school on this occasion. वाइस चेयरपर्सन भूमिका बख्शी द्वारा यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि मुकुल हिंदी स्कूल ओटावा कनाडा अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ का वर्चुअल अर्धशताब्दी समारोह बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। मैं मुकुल हिंदी स्कूल के सभी छात्र छात्राओं, अध्यापकों और मैनेजिंग कमेटी के सभी सदस्यों को अनेक शुभकामनाएं देता हूं। संपूर्ण भारत देश के लिए गौरव का विषय है कि मुकुल हिंदी स्कूल पिछले 50 वर्षों से भारतीय मूल के बच्चों को हिंदी भाषा सिखा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा बच्चों का भारतीय संस्कृति और परंपराओं से निरंतर परिचय करवा रहा है। मुकुल हिंदी स्कूल का यह सफल प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय है। निश्चित ही हिंदी भाषा का अध्ययन, भारतीय संस्कृति की जानकारी भारतीय मूल के बच्चों को अपने भारतवर्ष से जोड़े रखने में सदा सहायक होगी, ऐसा मेरा मानना है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है, जो सारे विश्व को एक विशाल परिवार के रूप में परिभाषित करता है। यह मंत्र हमारी भावी पीढ़ी को विश्व शांति और सकारात्मक मानव मूल्यों के प्रति सदैव प्रेरित करता रहेगा। इसका एक उदाहरण सारे विश्व को जब देखने को मिला जब हमारे देश ने कोरोना की महामारी से जूझ रहे जरूरतमंद देशों को मानवीय मूल्यों के आधार पर आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर विश्व के 177 देशों ने जन सामान्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए योग को अंगीकार करना स्वीकार किया। योग भी भारतीय संस्कृति का सारे विश्व को सर्वे संतो निरामया की विचारधारा के अधीन दिया गया एक अनुपम उपहार है। कहते हैं योगा इज वर्ल्ड वाइड बट इट हैज गॉट ए होम इन इंडिया। हमारे अपने बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायक है। पूर्ण विश्वास है कि मुकुल हिंदी स्कूल आने वाले समय में नई उपलब्धियां प्राप्त करेगा, भावी पीढ़ी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेगा। मैं मुकुल हिंदी स्कूल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नमस्कार। I would now like to introduce to you a prominent Indian actor who will share his greetings with us today, Shri Pankaj Tripathi. Pankaj is an Indian actor who appears predominantly in Hindi films. He made his debut in 2004 with roles in Run and Omkara and has since worked in more than 60 films and TV shows. His breakthrough came in 2012 with his antagonistic role in the Gangs of Wasseypur film series. He has since received critical praise for multiple films including Fukre, Masan, Bareli Ki Barfi, Newton, and Stree. For Newton, Tripathi earned several awards, including a National Film Award. Pankaji also earned the Diversity in Cinema Award at the Indian Film Festival in Melbourne this year. नमस्ते, मैं पंकज हूँ और मुकुल हिंदी स्कूल ओटावा कनाडा के सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बेहद अच्छा लगता है कि हिंदुस्तान से, भारत से इतना दूर भी विदेशों में आप सब अपनी भाषा, संस्कृति और कल्चर को इतना बढ़िया से जीवित रखे हैं। सो मेरी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम को। शुक्रिया। As we progress towards the last segment of our program, let's take a walk down memory lane through a video production highlighting some of Mukul's inspiring, pivotal, and exciting moments over the past 5 decades, a result of the tireless efforts and unwavering commitment of its teachers, students, committee members, the Ottawa Carleton District School Board, and the larger Mukul Hindi School community. We will start with a message from the first chairperson of the Mukul Hindi School Management Committee, Dr. Radhe Singalanko, who was appointed chair in 1981 following the creation of the Management Committee's constitution. It will be followed by another message from Mrs. Nimi Singhal, Auntie, who was the first credit course teacher to teach the Hindi School Credit Class program in 1981. धन्य है मुकुल से जुड़े सभी परिवार, छात्रगण
teachers, management committee members and अनगिनत volunteers जिनकी मेहनत और कठिन परिश्रम से आज ये दिव्य दृश्य देखने को मिला है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस शुभ अवसर पर आपके साथ हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। वास्तव में मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मुकुल का ये नन्हा अंकुर इतना बड़ा पेड़ ही नहीं बन जाएगा, बल्कि फूल, पत्ती एवं फलों से इस प्रकार लद जाएगा। मेरे तीनों बेटे मुकुल के विद्यार्थी रह चुके हैं। I think it was 1981, 40 years ago, that I was chosen to be the chairperson of Mukul's management committee with Vimla Sharma as principal and then Yash Umar as principal in 1982. By this time, in order to promote diversity and multiculturalism, Ontario's heritage program had begun to support Mukul with a little bit of money. This led to a significant growth in the number of Mukul students coming to Saturday classes. The influx of little money also led to the formalization of school's curriculum and the creation of its constitution and the set of bylaws. मैं बिल्कुल शब्दहीन हूँ ये बताने में कि केवल एक या दो ही नहीं, but there are 5 teachers who started in 1981 and are still involved with the school's activities, including weekly Hindi classes. जरा सोचिए कितना गहरा रिश्ता है इन सब टीचर्स का आपके मुकुल से, कि आप सब लोग अपनी हिंदी मातृभाषा और अपने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं। This unprecedented, unstoppable success has produced a glorious past, and since the torpedo train is now already passing the 50-year station, reaching 75 or 100 years of unparalleled success would simply be a breeze for the current generation of Mukul leadership. फिर से मेरा सादर नमस्कार एंड हार्दिक धन्यवाद। मुझे मुकुल की 50वीं वर्षगांठ पर कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं, जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। याद है मुझे वह संध्या जब मुकुल को उसका नाम मिला। याद है मुझे वह संध्या जब मुकुल को उसका नाम मिला। बोए बीज फूटे अंकुर, नन्हे नन्हे प्यारे फूलों ने जन्म लिया। परिश्रमी अध्यापकों ने मेहनत से पाला, पोसा और खड़ा किया। जब केजी, एलिमेंट्री, मिडिल कक्षाओं को विद्यार्थियों ने पास किया, मुकुल की उच्च कक्षाओं में हिंदी ज्ञान देने पर विचार विमर्श हुआ। तब और भाषाओं के समान हिंदी में क्रेडिट कोर्स पढ़ाने का फैसला हुआ। मेरे अहोभाग्य सर्वप्रथम मुकुल में हिंदी क्रेडिट कोर्स पढ़ाने का अवसर मिला। भविष्य में भी यह कोर्स पढ़ाने की प्रथा का स्वप्न साकार हुआ। विद्यार्थियों की मेहनत लगन से मुकुल ने यह ऊंचा कदम भी पार किया। असीम खुशी हुई मुझे जब सबको क्रेडिट कोर्स प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। मेरी इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां और मुकुल विद्यार्थियों को प्यार। हमारा मुकुल 50 साल का हुआ। धन्यवाद। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान ये
कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आशा है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। मुकुल परिवार की ओर से आप सभी का बहुत आभार कि आपने अपना मूल्य समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में भाग लिया। अंत में मैं मुकुल के उप अध्यक्ष श्रीमती भूमिका बख्शी से निवेदन करता हूं कि वह कुछ शब्द बोलें। नमस्कार। मुकुल हिंदी स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और आभार। On behalf of Mukul Hindi School and the 50th Anniversary Committee, I extend my heartfelt thanks to all the speakers and participants for gracing the occasion today. First of all, I would like to thank our chief guest, His Excellency Shri Ajay Pisaria ji, for his kind words of encouragement and for deepening the long-standing support and patronage of the High Commission as we embark on this key milestone. मैं आभार व्यक्त करती हूँ भारत से जुड़े हमारे विशेष अतिथि पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर जी का, जिनके कविता पाठ ने न केवल हमारा मार्गदर्शन किया परंतु मुकुल हिंदी स्कूल को एक नई दिशा और प्रेरणा प्रदान की। हमारे विशेष अतिथि भारत से जुड़े पूर्व केंद्रीय संस्कृति मंत्री और गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश कुमार शर्मा जी के सार गर्भित प्रेरणादायक एवं स्नेहिल आशीर्वचनों के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। भारत से जुड़े सेलिब्रिटी वक्ता श्री पंकज त्रिपाठी जी के उत्साहवर्धक संबोधन के प्रति भी अनेकों धन्यवाद। We are extremely grateful to our event sponsors Sistel for their generous donation and support. I'd now like to extend my heartfelt thanks to our speakers from the Mukul family for their enlightening and thought-provoking remarks and poems. The speakers were Order of Canada Dr. Jagmohan Humar, Mr. Radhe Singhal and Mrs. Nimi Singhal, and Mrs. Arna Gupta. I'd like to express my sincere gratitude towards our respectable advisory committee comprising Dr. Somesh Bhargav and Mr. Nishit Goyal for their guidance. With this, I'd also like to thank Dr. Anuj Bhargav for his thoughtful and kind contribution as the Master of Ceremony today. मैं धन्यवाद करती हूँ मुकुल हिंदी स्कूल की 50वीं वर्षगांठ की प्रबंधक समिति के अध्यक्ष श्री दिनेश मोहन जी और श्री अमित वाजपेयी जी का, साथ ही मुकुल हिंदी स्कूल समिति के अध्यक्ष श्री विनय पुरोहित जी का और 50वीं वर्षगांठ प्रबंधक समिति के सभी सदस्यों का उनके परिश्रम और योगदान के लिए। I would now like to thank our media partner Ms. Dipali Bhatt for developing this event's video productions. Special thanks to our respected teachers, committee members, alumni, and students for their dedication and tireless efforts in making this event a success, and especially to all of you for joining us today. I hope you enjoyed the program as we all took a walk down the memory lane. So please stay connected with us through Facebook or email and share your feedback as we plan our future 50th anniversary events in the lead up to a potential in-person gala event in 2022. Stay safe. Dhanyavad.